गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप यू ऑल आर फाइन। माय नेम इज कृपाली सिसंगिया एंड वेलकम्स यू इन सरस्वती ग्रुप ऑफ इंस्टिट्यूट। केम छो बाळको, બધા મજામાં છો ને? આપણે એકવાર તો મળી જ ચૂક્યા છીએ। કેમાં જોઈ છે તમે મને? યસ, યાદ આવી ગયું ને? એડવાઇઝરીમાં જોઈતી તમે મને, બરાબર? તો હું એ જ છું અને હું તમારી હિન્દીની ટીચર છું, બરાબર બાળકો? અને આજે આપણો ફર્સ્ટ વિડીયો લેક્ચર છે, બરાબર બાળકો? તો આજે આપણે ભણવાની વાતો તો નહીં જ કરીએ, બરાબર ને? પહેલાં લેક્ચરમાં થોડી ના ભણવાનું હોય, પહેલાં લેક્ચરમાં તો વાર્તા સાંભળવાની હોય, બરાબર બાળકો? તો પહેલાં તો તમે લોકો મને એ કહો કે તમે લોકો ક્યાં રહ્યો છો? ગુજરાતમાં, રાઈટ? તો આપણે બધા ગુજરાતમાં રહીએ છીએ અને આપણે કઈ ભાષા બોલીએ છીએ? ગુજરાતી, રાઈટ? આપણે બધા ગુજરાતમાં રહીએ છીએ તો આપણે ગુજરાતી બોલીએ છીએ। તો એવી જ રીતના જો કોઈ પંજાબમાં રહેતું હોય તો પંજાબી બોલતું હોય, બરાબર બાળકો? દરેક રાજ્યોની પોતાની અલગ અલગ ભાષા હોય છે, બરાબર? જેવી રીતે કોઈ મહારાષ્ટ્રમાં રહેતું હોય તો ત્યાં તો કોઈ મરાઠી બોલતું હોય છે, બરાબર? ગુજરાતના લોકો ગુજરાતી બોલતા હોય છે। પણ બાળકો આપણે કયા દેશમાં રહીએ છીએ? યસ, આપણે ભારતમાં રહીએ છીએ। તો ભારતની રાષ્ટ્રીય ભાષા કઈ છે? આપણી રાષ્ટ્રીય ભાષા કઈ છે? યસ, આપણી રાષ્ટ્રીય ભાષા હિન્દી છે। અને હિન્દી તો આપણી બધાની ફેવરિટ છે, બરાબર ને બાળકો? તમે જે મૂવી, સિરિયલ, સોંગ અને એનિમેશનના જે મૂવી જોવો છો ને અને કાર્ટૂન પણ જોવો છો એ બધા કઈ ભાષામાં આવે છે? હિન્દીમાં આવે છે, બરાબર ને બાળકો? તો આપણે આજે હિન્દી વિશે જાણીએ। હિન્દી આપણી રાષ્ટ્રીય ભાષા છે। જેવી રીતના ગુજરાતી આપણી માતૃભાષા છે એવી જ રીતના હિન્દી આપણી રાષ્ટ્રીય ભાષા છે, બરાબર ને બાળકો? 14 સપ્ટેમ્બરને રાષ્ટ્રીય હિન્દી દિવસ તરીકે ઉજવવામાં આવે છે। જેવી રીતે તમે લોકો તમારો બર્થડે ઉજવો છો ને તો એવી જ રીતે હિન્દીનો પણ બર્થડે આવે છે। ક્યારે આવે છે? 14 સપ્ટેમ્બરના, બરાબર બાળકો? તો આજે આપણે કંઈ પણ વસ્તુ શરૂ કરીએ ને એ પહેલાં તો આપણે ટેક્સ્ટબુકના રિલેટેડ કાંઈ વસ્તુ નથી કરવી, બરાબર? આજે આપણે કલર પૂરશું, બરાબર? તમને કલર પૂરવા ગમે? યસ, તો તમને કલર પૂરવા ગમે તો આપણું પહેલું ચેપ્ટર છે રંગ ભરો। એમાં એક મસ્ત નાનું એવો ક્યુટ નાનું એવું બેબી આપેલું છે, એ વરસાદમાં પલળે છે। તો આપણે એમાં કલર પૂરવાના છે, બધાએ એના મનપસંદ કલર એમાં પૂરવાના રહેશે, બરાબર ને બાળકો? કલર પૂરવા તો બધાને બહુ જ ગમે છે ને બાળકો? બરાબર। પછી હવે આપણે એના પછી એક બીજી વસ્તુ કરવાના છીએ। બીજી વસ્તુ કઈ? તમને એમ થશે કે બીજી વસ્તુનું દીદી શું કહે છે? તો જો અહીંયા બોર્ડમાં લખેલું છે કે चित्रकथा। અને चित्रकथा मतलब कि पिक्चर्स वाली स्टोरी। उसमें आपको पिक्चर्स दिए गए होंगे, वहाँ पे कुछ लिखा नहीं होगा, सिर्फ पिक्चर्स ही देखकर आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है बच्चों? तो पहली चित्र वार्ता है कौन जीता और दूसरी प्यासा कौवा, ठीक है बच्चों? ये दोनों के दोनों कहानी आपने सुनी होंगी। किसके पास सुनी है आपने बच्चों? यस, आपकी दादी, दादा या आपकी मम्मा आपको कहानी सुनाती है ना? यस, तो ये दोनों यही कहानियाँ हैं। आपको मैं यहाँ पे आज फिर सुनाऊंगी। कौन जीता मतलब वो आपने कछुआ और खरगोश वाली कहानी तो सुनी ही होंगी, ठीक है ना बच्चों? तो ये तो वही कहानी है। बच्चों, आपको कहानियाँ सुनना कितना पसंद है ना? क्योंकि कहानियाँ हमें सुनना बहुत अच्छा लगता है और कहानी से हमें कुछ न कुछ तो सीख मिलती ही रहती है। तो कहानी सुनकर हमें जो सीख मिले उसे हमें अपने दिमाग में रख देनी चाहिए, ठीक है बच्चों? तो पहली कहानी है कौन जीता। तो आपकी टेक्स्ट बुक में
पेज नंबर 6 और पेज नंबर 7 पे आपको 2 कहानियाँ दी गई है। हर एक कहानी में 4-4 पिक्चर्स दिए गए हैं। ठीक है बच्चों, वो मैं आपको एनिमेशन के थ्रू दिखाऊंगी, पर उससे पहले मैं जो कहानी में आने वाला है उसके बारे में बता देती हूँ। कछुआ और खरगोश की कहानी तो आपने सुनी ही है। एक कछुआ होता है और एक खरगोश होता है। दोनों में एक दिन क्या होता है कि कंपटीशन होता है। और कौन सा कंपटीशन बच्चों? यस, रेस वाला कंपटीशन। और कछुआ और खरगोश तो एक दिन रेस लगाते हैं। फिर क्या होता है बच्चों, आपको तो पता ही है। कछुआ तो कैसा होता है, चलने में बिल्कुल स्लो होता है और खरगोश बिल्कुल तेजी से भागता रहता है। तो बच्चों तो क्या होता है पता है ना आपको, कि खरगोश को तो लगता है कि इस कछुए से मैं शर्त लगाऊंगा ना तो कछुआ तो हार जाएगा। ठीक है बच्चों, तो क्या होता है पता है, कछुआ तो फिर भी उससे शर्त लगाता है कि कोई बात नहीं भैया, तुम तेज हुए तो क्या हुआ, हम भी धीरे धीरे चलकर अपने मंजिल काट ही लेते हैं। तो दोनों में शर्त लग जाती है। शर्त लग जाती है तो दोनों शर्त लगाते हैं। फिर खरगोश होता है वो तो तेजी से भागने लगता है और मुस्कुराता रहता है। पीछे देख देख करके देखो कछुआ कैसा धीरे धीरे चल रहा है। कोई धीरे धीरे चल रहा होता है तो उसकी मजाक थोड़ी ना उड़ाई जाती है बच्चों। ये खरगोश भी, तो खरगोश तो पीछे देख देख कर हंस रहा होता है। फिर क्या होता है बच्चों कि वो आगे पूरा भाग जाता है और पीछे देखता है तो कछुआ तो बहुत पीछे रह गया होता है और वो आगे निकल कर सो जाता है। फिर सोते सोते उसको तो आँख बहुत देर तक लग गई और कछुआ अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है। फिर खरगोश अचानक से उठ जाता है और उसको पता चलता है कि कछुए ने तो शर्त जीत ली है। तो बच्चों हमें इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें अपने ऊपर इतना भी गर्व नहीं करना चाहिए। हम चाहे किसी भी बात में तेज क्यों ना हो, पर हमें किसी को कम नहीं समझना चाहिए, चाहे वो कैसा भी हो। पर हमें उस पर और उसकी काबिलियत पर शक नहीं रखना चाहिए। दुश्मन को कभी कम नहीं समझना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो ये बात हमें कंपटीशन में तो बहुत लागू होती है। अब दूसरी कहानी, तो उसके बारे में भी आपको मैं बता दूं। यहाँ पे मैं एनिमेशन वाली स्टोरी तो आपको बताऊंगी ही, पर उससे पहले उस स्टोरी में क्या आने वाला है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। ये प्यासा कौवा, तो प्यासा कौवा वाली कहानी तो आपने सुनी ही होंगी 100%, क्योंकि प्यासा कौवा तो बहुत फेमस कहानी है। ठीक है बच्चों, तो एक कौवा था, दोपहर का समय था और कौवे को बहुत प्यास लगी थी। बच्चों जब आप समर में एग्ज़ाम दे के घर पर जाते हो तो आप भी तो बहुत थक जाते हो ना, क्योंकि हमारी जो फाइनल एग्ज़ाम होती है वो भी तो समर में ही होती है। ठीक है बच्चों, तो ये कौवा भी जंगल में घूम फिर कर बहुत थक जाता है और उसे प्यास लग जाती है। दोपहर को धूप भी बहुत थी। फिर कौवा इधर उधर देखता है और सोचता है कि अब क्या होगा, मुझे तो पानी पीना है, पानी भी नहीं दिखाई दे रहा है। फिर कौवे ने दूर देखा तो उसे एक पानी का घड़ा दिख जाता है। फिर उड़ कर सीधा वहाँ चला जाता है। फिर देखता है घड़े में, तो घड़े में पानी तो था पर बहुत नीचे था। तो कौवा कैसे उसमें अंदर जाकर तो पानी नहीं पी सकता। तो कौवे ने सोचा कि दिमाग लगाना पड़ेगा कि पानी तो पीना है, बहुत प्यास भी लगी है, पर कैसे पीऊँ, मेरी चोंच तो उसमें आती ही नहीं है, बहुत नीचे है पानी, मैं अपनी चोंच को लंबी तो नहीं कर सकता हूँ। फिर उसने एक युक्ति सोची। युक्ति में उसने क्या इधर उधर देखा तो क्या हुआ, उसको कितने सारे कंकड़ दिखाई दिए। तो उस कंकड़ को उठा कर उस घड़े में डाल देता है। फिर क्या होता है बच्चों, यस आपको तो पता ही है, उस घड़े में से पानी कंकड़ डालने के कारण ऊपर आ जाता है। फिर कौवा अपनी चोंच उसमें डुबाकर पानी पी लेता है, अपनी प्यास बुझा लेता है और चला जाता है। ठीक है बच्चों, ये थी हमारी दूसरी कहानी।
और इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है बच्चों? यस, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि मुसीबत चाहे कोई भी आए, हमें धीरज से और शांति से सोचना चाहिए। मुसीबत तो यही थी कि उसे प्यास लगी थी, पर उसने हड़बड़ी में आकर नहीं सोचा, उसने शांति से सोचा। शांति से सोचने से उसे युक्ति मिल ही जानी थी। ठीक है बच्चों, तो शांति से हम कोई भी बात सोचेंगे तो हमें युक्ति तो मिल ही जाएंगी। एग्जाम में होता है ना बच्चों, कोई बार हम पढ़कर आए होते हैं पर सारा का सारा भूल जाते हैं, तो उसी टेंशन में हम जो याद है वो भी भुला देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए बच्चों। कभी कभी हमें याद ना आए तो उस चीज़ को रख देनी चाहिए। जब पूरा का पूरा पेपर पूरा हो तभी हमें उसको शांति से सोच कर लिखना चाहिए, क्या पता याद आ जाए। ठीक है बच्चों, तो अब मैं आपको एनिमेशन वाली स्टोरी दिखाती हूँ। ठीक है बच्चों, खरगोश और कछुआ। खरगोश को अपनी दौड़ पर बहुत घमंड था और एक दिन कछुआ तालाब में तैर रहा था। एक दिन खरगोश को क्या सोचता है कि वो कछुए की खिल्ली उड़ाता है, उसको गिराता है और उसको कहता है कि चलो ना हम दोनों रेस लगाते हैं। तो कछुआ बोलता है कि ठीक है भैया, कोई बात नहीं, हम दोनों में कल रेस हो जाए, जो जीता होती है। खरगोश तो भागने लगता है जोर जोर से और कछुआ अपनी धीरी चाल से चलता रहता है। खरगोश को अपनी चाल पर बहुत घमंड था। वो सोच रहा था कि मैं तो कछुए को हरा ही दूंगा। कछुआ तो कुछ नहीं सोचता, धीरे 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 चलता रहता है। चलते 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 सारे आगे निकल जाते हैं उसके। सारे प्राणी भी जंगल के उसको देख रहे थे। कछुआ फिर भी हार नहीं मानता था, धीरे धीरे चलता जा रहा था। जिराफ कछुए को देख रहे थे कि अब क्या होगा, कछुआ तो बहुत पीछे है। खरगोश तो भागता 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 जा रहा था। फिर खरगोश पीछे देखता है कि कछुआ तो बहुत पीछे रह गया है, तो क्यों ना मैं थोड़ी देर आराम कर लूं। तो वो सोचता है, बैठ जाता है, तो एक पेड़ के नीचे वो सो जाता है। उसको नींद आ रही थी। मांगता है कि भैया मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारा बहुत अपमान किया। तो बच्चों, इस कहानी से सीख मिलता है कि घमंड का सर हमेशा नीचा होता है। प्यासा कौवा। सूरज की गर्मी बहुत थी, सूरज बहुत तप रहा था। उसी में एक जंगल में एक कौवा घूम रहा था। कौवे को बहुत प्यास लगी थी, जंगल काफी घना था और सूरज की गर्मी के कारण नदी तालाब सूख गए थे। कौवा घूमता घूमता आता है और उसे बहुत प्यास लगती है। प्यास लगने के कारण वो इधर उधर पानी की खोज करता है, पर उसे कहीं भी पानी मिलता नहीं है। तो वो दूर उसकी खोज करने के लिए जाता है और जाकर एक पेड़ के पास पहुंचता है। पेड़ के पास पहुंचकर वो सोचता है कि मुझे तो प्यास लगी है। कुएं के पास जाता है, कुएं में देखता है कि पानी पीना है, बहुत प्यास लगी है। फिर सोचता है कि पानी कैसे पीऊं, कुएं में तो पानी है ही नहीं, और है तो वो भी जरा सा, तो मैं उसमें कैसे पीऊं, मैं उसमें जाऊंगा तो डूब जाऊंगा। फिर वो आगे पानी की तलाश में चला जाता है। फिर सोचता है कि पानी के बिना तो मर जाऊंगा, बहुत धूप है। फिर कौवे को एक घड़ा दिखाई देता है। घड़े में देखता है तो बहुत पानी नीचे था। उसको प्यास लगी थी पर पानी पीना था, पर पानी तो बहुत नीचे था। पानी कैसे पीता कौवा?
तो कौवा सोचने लगता है और इधर उधर देखता है कि मैं पानी कैसे पीऊंगा, पानी में पीने के लिए मेरी चोंच तो उसमें नहीं जाएगी। फिर इधर उधर देखता है तो उसे बहुत सारे कंकड़ दिखाई देते हैं, तो इस युक्ति काम कर जाती है। तो कौवा अपनी चोंच से एक एक पत्थर उठाता है और घड़े में डालने लगता है। डालते ही डालते पूरा घड़ा पानी से भर जाता है और ऊपर आ जाता है पानी। फिर कौवा अपनी चोंच डुबाकर पानी पी लेता है और अपनी प्यास बुझा लेता है। फिर जितना मन था उतना पानी पी लेता है और चला जाता है। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिली कि युक्ति से काम लेना। तो सुनी बच्चों आपने कहानी, कैसी थी? यस, आपको तो मजा आया क्योंकि आपने ये एनिमेशन वाली स्टोरी सुनी थी। आपने ये तो पहले तो मैंने आपको सिर्फ बताई थी, फिर यहाँ पे आपको एनिमेशन वाला दिखाई भी दिया, पूरी की पूरी स्टोरी आपने देखी। तो आपको क्या होता, आपको क्या हुआ? बिल्कुल मजा ही आया होगा। ठीक है बच्चों, तो ये तो हमारा पहला लेक्चर था, इसीलिए मैंने आपको पूरी की पूरी स्टोरी सुनाई। पर अब ऐसा तो हर लेक्चर में नहीं होने वाला है बच्चों। ये कहानी आपने सुनी तो इसको आपको लिखना भी पड़ेगा। ठीक है बच्चों, बहुत आसान है, लिखना तो बहुत ही आसान है क्योंकि मैं जो आपको सिखाने वाली हूँ। ठीक है बच्चों, तो अब हम इसके आगे के लेक्चर से हम हिंदी के वर्ण सीखेंगे। वर्ण मतलब कि आप इंग्लिश में सीखे ना, ABCD A to Z आपने सीख लिया, तो आपको वो जो वर्ड होते हैं वो बनाने में कितनी आसानी रहती है। तो वैसे ही हिंदी में भी होता है बच्चों। आप क से ज्ञ तक आप सीखोगे तो आपको पूरे के पूरे वर्ड बनाने में और सेंटेंस बनाने में और कहानियाँ सुनकर उसको लिखने में बहुत मजा आएगा। ठीक है, यहाँ तो आपने देख देख कर कहानी सुन ली, देख देख कर आपने समझ भी ली, पर समझ कर लिखना भी तो पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो अगले वीडियो लेक्चर में मैं आपकी कहानी को हम वर्ण के अनुसार कैसे लिखेंगे वो सब जानेंगे। ठीक है बच्चों, धीरे धीरे हम भी लिखना, पढ़ना, समझना और सारी की सारी बातें समझ जाएंगे, सीख जाएंगे बच्चों। हम धीरे धीरे सब कुछ सीख ही जाएंगे। ठीक है, तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है कि हम कैसे सीखेंगे। ये कहानी सुनना तो हमें दिलचस्प लगा और अब आगे भी तो दिलचस्पी आने वाला है। ठीक है बच्चों, तो हम अगले लेक्चर में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों, अपना ख्याल रखना और अगले लेक्चर के लिए तैयार रहना। ठीक है बच्चों, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।